इस्लामी तालीमात में हमें यही सिखाया गया है, ठीक है। तो आप जिस फ्रेम ऑफ माइंड से बैठेंगी मुझसे वैसे ही बातें निकलेंगी, मेरा कमाल नहीं होगा, आपकी फिक्र, आपकी सोच, आपकी यूनिटी, आपका अटेंटिव होना, आपका पेइंग द अटेंशन, ये चीज लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठना, ये इस प्रोग्राम को, इस कोर्स को एक्सीलेंट से बेस्ट तक ले जाएगा इंशाल्लाह। अच्छी सी क्लास मेरी सारी बेटियों के लिए, बेटों के लिए। बेटा EPML, एजुकेशन, प्लानिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप, it's a course introduced by Javed Iqbal. Allah Almighty gifted me this thing because I do believe promotion is within the system. You know my 3 promises. Yes, sir. Yes. 22 years back I made 3 promises with my team. Self-respect, number 2 promotion within system, number 3 fringe benefit. System will grow, people will grow, team will grow. Definitely to promote the people within system, there was a challenge for me, or there is a challenge for me. I must learn, should learn more and more. Allah Almighty gifted me many things. I have made the commitment with myself. I was committed कि promotion within system. What does it mean? कि we learn from each other. Then we can make them capable. More best planner, best teacher, best manager, the professional leader. EPML course designed by me few years back, not 22 years back. Just might be 4 or 5 years back. Okay, education, planning, management, leadership. Next. Why EPML? What are the objectives of this? Why we should do this course? What's the importance of this course? It's very much important. It's very much important because when we come to know that there are the objective or objective are very attractive, then we love to do that thing. We are ready to accept the challenge. Otherwise we don't accept the challenge. We are not ready to do that thing if not attractive for me. मैं जिंदगी में वो काम नहीं करता जो मुझे अट्रैक्ट नहीं करता। मैं क्या, कोई भी, हम दिल से वो काम करते हैं जिसके अंदर हमारे इंसेंटिव होते हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव एम्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। ओके जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ EPML with the help of E, yes, with the help of E, with the help of education. इस कॉलम के अंदर जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, they will make you a true educationist, inshallah. What? Educationist, not just teacher. You would be a true educationist, inshallah. Number 2, P stand for planning, but we will focus or try to make you the best planner. You must be knowing what's planning, what's a SWOT analysis, strategic plan क्या होता है, और बेस्ट प्लानर कैसे प्लान करता है, ये सब कुछ इंशाल्लाह इस कोर्स के जरिए से आप सीखेंगे। नंबर 3, M stand for management. We will try to make you, or you can become the smart manager with the help of this course. Number 4, L stand for leader. You will become the professional leader after completing this course, inshallah. After that, I can claim you become a true team head or team leader who knows how to make the team and how to lead the team efficiently and effectively. अभी द न्यू कमर्स बहुत सारे जो बैठे हैं उन्हें नहीं पता कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली क्या है। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा आगे जाके, क्योंकि जो एडवांस लेवल जो पहले कोर्स कर चुके हैं उनको पता है ये क्या है। ये सब चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होगी बेटा इंशाल्लाह। 1 2 3 4 5 10 हर चीज आपके फिंगर टिप्स पे होगी। ओके, ये ऑब्जेक्टिव है। आगे चले बेटा। तो इसका मतलब है EPML हमें दोबारा जाए। बनाने जा रहा है। EPML हमें EPML ही बनाने जा रहा है। एग्जैक्टली, EPML आपको EPML ही बनाने जा रहा है, एजुकेशनिस्ट
प्लानर, मैनेजर एंड लीडर, जिसकी मदद से आप कैंपस हेड के तौर पर not only one campus, 2 campuses, 10 campuses, 40 campuses. Some people ask me, कि sir, how do you manage 42 campuses? It's very tough. और इसके बाद आप ट्रेनिंग भी करते हैं, दूसरे और मामलात भी हैं, इतनी चीजें आप कैसे करते हैं? मैं कहता हूं by the grace of Almighty, there are only 4 letters. और 4 letters stand for 4 words, और 4 words stand for 4 skills, और 4 skills make your attitude, behavior, character very excellent. Objective clear हो गया? Yes, sir. Are you ready to become an educationist? Yes. Best planner? Yes. Smart manager? Yes. Proficient leader? Yes. Inshallah you would be. Inshallah. Okay. How EPML is conducted? It's very much important. इसकी आउटलाइन क्या होगी, इसे कैसे पढ़ाया जाएगा? बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुकिश नॉलेज को ऑलवेज चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नॉलेज वो है जो प्रैक्टिकली आप उसे करके उसे ना सिर्फ करते हैं बल्कि उससे आजमाते हैं और फिर उसको साबित करते हैं कि ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बुकिश नॉलेज ठीक नहीं होता, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो बुकिश नॉलेज से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए अभी मैंने बोला था इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल एंड कैरेक्टर, पार्ट ऑफ ए कैरेक्टर। इसे हैबिट कह लें, इसे एटीट्यूड कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन पार्ट ऑफ कैरेक्टर। और आगे जाके हमने एटीट्यूड, बिहेवियर भी आपको पढ़ाना है, कैरेक्टर भी पढ़ाना है, तो ये चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। आप कहेंगे सर जो हमें कैरेक्टर पढ़ाते थे, ओहो पूरी मैनेजमेंट, लीडरशिप, प्लानिंग, ये तो सारी बिहेवियर और एटीट्यूड के ऊपर बेस कर रही है। लीडरशिप इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं, मैनेजमेंट इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं, मार्केटिंग इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं, हमारी जिंदगी इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं। अगर हम लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड ना कर सकें, अगर हम लोगों के एटीट्यूड को अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो बेटा हम, आप यकीन जाने, जिंदगी के किसी भी फॉर्मल रिलेशनशिप में कामयाब नहीं हो सकते। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, मेरे हिसाब से मैनेजमेंट दुनिया के सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एवरीवन नीड्स दिस स्किल, एवरीवन, as a mother, as a student, as a sister, as a brother, as a son, as a husband, as a father, आप as a teacher, as a campus head, as a leader, even आप बिजनेसमैन के तौर पर अगर आप छोटा सा बिजनेस भी कर रहे हैं तो you need the management। एक किचन नहीं चलता मैनेजमेंट के बगैर।